Good morning, everybody. It's wonderful that we have gathered here today for signing this memorandum of understanding between the Central University of Himachal Pradesh and Library of Tibetan Works and Archives. I welcome the Vice Chancellor, the Registrar, and the team from the university and thank them for making this happen. I think this is an important happening given the deep historical relation between India and Tibet. And some historians, they say that the relation is as old as the Himalayas. The relation is not political, economical, but mainly spiritual. The opening of Central University in all the states was envisioned by the Prime Minister of India and endorsed by the President. And I'm very happy that we have one here in the Himachal state. Today, the pure and rich Nalanda tradition is available only among the Tibetan community. Seeing this rich wealth of knowledge, people around the world come to study in India and in the Tibetan institutions. Here in the Library of Tibetan Works and Archives also, we have students from all over the world who come to study. And this institution is started by His Holiness the Dalai Lama and supported by the Ministry of Culture, Government of India. I'm optimistic there will be fruitful exchanges, especially in preserving rich ancient Indian and Tibetan tradition. The tradition of our forefathers like the roots of a tree, which if it is not stable, then the modern knowledges which are like branches and fruits and flowers cannot contribute much to the full growth of the humanity. And keeping this in mind, His Holiness the Dalai Lama is really working very hard to restore the ancient Indian tradition, which is really, really much to contribute to the rest of the world. And when we see from this rich Indian culture tradition, the world has to get much from India. And His Holiness, in fact, said that it's only from India you can get such a vast store of knowledge. So these two institutions have much to contribute in our own way to that goal. As you all know well, Memorandum of Understanding is not a legal document, but it's much better than a gentleman's agreement. So I'm glad that LTW was able to make connection to Central University of Himachal Pradesh right in the beginning when we invited the previous Vice Chancellor here and who gave a wonderful talk here. I once again want to express my deep appreciation to the President, Vice Chancellor, Registrar, and everyone who was supported in signing this agreement. And I will be failing my duty if I don't remember Professor Sharma, who because of his age and also not very well could not come to attend this meeting, but who was one of the spirit behind this agreement also. And I'm really looking forward, without taking much time, really looking forward for many fruitful exchanges and programs, not just for Central University of Himachal Pradesh, not just for Library of Tibetan Archives, but for our youth to become resourceful people. Thank you very much. LTW के डायरेक्टर गेशे लखदौर। गेशे प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं कि भाई हमारे जहाँ जो PhD है तिब्बतन सिस्टम में वो गेशे कहा जाता है, लेकिन दोनों में एक थोड़ा डिफरेंस है। PhD का मामला वाइवा में बैठे बैठे ही हल हो जाता है, एक प्रश्न पूछता है दूसरा उत्तर देता है, लेकिन गेशे का जब PhD का वाइवा होता है तो बैठे बैठे हल नहीं होता और हजारों प्रश्न पूछने वाले होते हैं और एक्टिंग करके सब जवाब देने होते हैं। जो बोला जाता है उसका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए। तो इसलिए तिब्बत में जब सेरा गांदेन में गेशे का एग्ज़ाम होता था तो बहुत से हजारों लोग देखने के लिए आते थे कि जो गेशे में अपीयर हो रहा है वो जो उत्तर दे रहा है बॉडी लैंग्वेज से वो रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे गेशे हमारे बीच में हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा सौभाग्य है लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन यहाँ हैं और आप सब मित्र यहाँ हो। मेरा तिब्बत को लेकर रिश्ता बड़ा पुराना है। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो इसलिए तिब्बत को लेकर काफ़ी लंबे अरसे से मेरा इन प्रश्नों से मैं वाबस्ता हूँ। मैं ये मानता हूँ ये जो लाइब्रेरी है LTWA सेंट्रल एशिया पर काम करने वालों के लिए इससे बड़ी लाइब्रेरी कोई नहीं हो सकती। और इतनी कलेक्शन किताबों की जहाँ है सेंट्रल एशिया को लेकर,
दुनिया भर से जहाँ लोग स्टडी करने के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो दुनिया भर से आते हैं, हिंदुस्तान से बहुत कम आते हैं। आप तो लाइब्रेरियन हैं, आपके ध्यान में होगा कि 99% जो स्कॉलर आते हैं, कोई फ्रांस से आएगा, कोई इंग्लैंड से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, लेकिन शायद रेयर कभी हो कि कोई हिंदुस्तान से आकर जहाँ काम करता है। और मेरे मन में शुरू में ही था, परमानंद शर्मा जी तो खैर उन्होंने तो बहुत ही काम किया तिब्बत के लिए, और ट्रांसलेशन में उनके बेटे ने, ललित जी ने बड़ा काम किया। इस अंडरस्टैंडिंग में परमानंद शर्मा जी का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर रांगड़ा जी का, और हमारे पीवीसी हंसराज शर्मा जी का। रांगड़ा जी क्योंकि आर्मी में रहे हैं, तो पूरा लद्दाख एरिया तिब्बत को लेकर और चीन को लेकर हमारी क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार का है, ही नोज बेटर देन मी। मेरा शुरू से ही एक तिब्बत की सरकार से भी, मैं प्रोफेसर सामदोग रिम्पोछे जी से मैंने बहुत बार कहा था कि तिब्बत के इशू को यदि हिंदुस्तान की आम जनता तक लेकर जाना है तो आपको भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर मामला जनता तक जाएगा। और बिना भारतीय भाषाओं का प्रयोग किए मामला ऊपर छत पर रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो LTWA ने कुछ किताबें 2, 4, 5 हिंदी में भी छापी हैं, मेरे ध्यान में है। भोटी में वो एक मैगजीन भी निकाला जाता है, हिंदी में निकाला जाता है। एक मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा भाई, मैंने पहले भी कहा था कि हम तिब्बत को लेकर, हिंदुस्तान और तिब्बत के रिश्तों को लेकर, और हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में तिब्बत की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर हमारी इच्छा है कि कुछ रिसर्च करवाई जाए। और सेंट्रल एशिया के लिए जहाँ काफ़ी, और तिब्बत को सेंट्रल एशिया, तिब्बत इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेंट्रल एशिया, और ख़ास करके मंगोलिया से जो तिब्बत के रिश्ते हैं। और वो तो जस्ट लोग कहते हैं कि जब तक मंगोलिया मुंह नहीं खोलता तब तक पता नहीं चलता कि वो तिब्बत का आदमी है या मंगोलिया का आदमी है। तो इतने पुराने रिश्ते हैं, इन सभी चीज़ों पर हमें हिंदुस्तान में रिसर्च करवानी चाहिए ताकि हमारे बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में PG डिप्लोमा इन तिब्बतन स्टडीज़ शुरू किया जाए और तिब्बतन स्टडीज़ को लेकर MPhil शुरू किया जाए, लेकिन हमारे पास अभी ज़मीन नहीं है और बिल्डिंग्स नहीं, अभी वो है। यदि LTWA इसमें कुछ रोल अदा कर सकेगा तो हम तिब्बतन स्टडीज़ को लेकर MPhil स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें फिर तिब्बत को लेकर वो सब इशू जो हमें कंसर्न करते हैं। देखिए, इट्स ए क्वेश्चन फॉर एंगल आल्सो, आप किस एंगल से रिसर्च करवाते हो। बहुत सी रिसर्च उस प्रकार की भी हो रही है कि ये तिब्बत और चीन और हिंदुस्तान के जो रिश्ते बिगड़े हैं, इसलिए बिगड़े हैं कि हिंदुस्तान ने परम पावन दलाई लामा जी को शरण दी है, इसलिए रिश्ते बिगड़े हैं। बहुत सी रिसर्च इसको लेकर भी हो रही है, वो डिस्टॉर्ट करने वाली रिसर्च है। तो हम हिंदुस्तान और तिब्बत के रिश्ते मजबूत हों, उसके लिए हमें रिसर्च करवाने की ज़रूरत है। उसमें LTWA कुछ भूमिका अदा कर सकेगा तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रहेगा। और ये नया हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो दोनों पक्षों को इसमें लाभ होगा, मैं समझता हूँ। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस मौके पर आए हैं, तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि सब लोगों की कितनी रुचि है कि ये काम आगे बढ़े। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी इस मामले में जिस ढंग से भी हो सके, ये MOU तो बहुत छोटी सी बात है, मैं समझता हूँ ये फर्स्ट स्टेप है। वो चीनी में एक कहावत आती है ना कि 10,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए भी जो पहला स्टेप लिया जाता है बहुत छोटा होता है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का पहला छोटा स्टेप है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी ओर से प्रयास रहेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी उसमें जितनी अपनी भूमिका अदा कर सके उतनी करेगी। धन्यवाद।